ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو پرینکا گاندھی تلنگانہ میں مزید 2 اسکیمز کا کریں گی آغاز۔ 1 جولائی سے ملک بھر میں نیا فوجداری قانون ہو جائے گا نافذ۔ جی چنا ریڈی تلنگانہ اسٹیٹ پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین مقرر۔ کے وی رنگا ریڈی کالج میں طالبات کو نماز پڑھنے کی ملی اجازت۔ ایم ایل اے جعفر حسین معراج کی کالج انتظامیہ سے بات چیت۔ روزمرہ کی اشیاء میں ملاوٹ، کاچیگوڑا پولیس نے 3 افراد کو کیا گرفتار جبکہ 3 فرار۔ تلنگانہ میں بی جے پی کی یاترا، اختتامی پروگرام میں امت شاہ کریں گے شرکت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی اس ماہ کی 27 تاریخ کو تلنگانہ ریاست کا دورہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں کانگریس حکومت کی 6 ضمانتوں میں سے 2 اہم 200 یونٹ تک مفت بجلی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی ضمانتوں کا پرینکا گاندھی آغاز کریں گی۔ پرینکا گاندھی 27 فروری کو چیوڑلہ کا دورہ کریں گی، جہاں وہ ان 2 ضمانتوں پر عمل کا آغاز کریں گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت بننے کے بعد پہلی مرتبہ پرینکا گاندھی اس تلگو ریاست کا دورہ کر رہی ہے۔ విధంగా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలలో మరో 2 గ్యారెంటీలను 27 తారీఖు నాడు సాయంత్రము ప్రారంభించబోతున్నాము। ప్రధానంగా 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇచ్చే మహిళలకు చేయూతనిచ్చే విధంగా ఈరోజు సిలిండర్ 500 రూపాయలకి ఇచ్చే కార్యక్రమం। రెండవ కార్యక్రమము పేదవాళ్లకు 200 యూనిట్ల వరకు తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఇంటికి ఉచితంగా విద్యుత్తునిచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఫిబ్రవరి 27 తారీఖు నాడు సాయంత్రము ప్రారంభించబోతున్నాము। ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు। రాష్ట్రంలో ఉన్న చిక్కుముడులను అన్ని విప్పుకు ملک میں جلد ہی آئی پی سی کی جگہ نیا فوجداری قانون نافذ ہونے جا رہا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس سال 1 جولائی سے تمام نئے فوجداری قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ 3 نئے قانون پارلیمنٹ میں پہلے ہی پاس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر دیوروپتی مرمو نے بھی گزشتہ سال دسمبر میں انہیں اپنی رضامندی دی تھی۔ کے وی رنگا ریڈی کالج میں نماز کے مسئلے کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حل کروایا۔ سنتوش نگر میں واقع کے وی رنگا ریڈی کالج میں لنچ ٹائم کے دوران نماز کی اجازت دینے کو لے کر طالبات احتجاج کر رہی تھی، جس پر آج یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کالج انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا اور طالبات کو لنچ ٹائم کے دوران نماز کی اجازت دلوائی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ آر ایچ پبلک اسکول کی دوسری عظیم الشان سالانہ تقریب کا انعقاد بروز جمعہ 23 فروری مینار گارڈن نیا پل حیدرآباد میں عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس کے ارکان اسمبلی جعفر حسین معراج و میر ذوالفقار علی، مائنورٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری اور پتھر گڈی کارپوریٹر سہیل قادری کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس تقریب کی نگرانی مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی ڈائریکٹر آر ایچ اسکول نے کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے علمی و فنی مظاہرے پیش کیے، جبکہ دینی و دنیاوی تعلیم دینے پر مہمانوں نے ادارے کے ذمہ داروں کی بھرپور ستائش کی۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ویب سائٹ پر مختلف زبانوں میں خبر رساں ادارے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس حوالے سے بہت کم کام دیکھنے میں آیا۔ اردو قارئین کو تازہ ترین اور حقائق پر مبنی خبروں سے باخبر رکھنا ایک اہم کام ہے، جس کے لیے اردو لکس کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ ان خیالات کا اظہار محمد ریاض احمد قادری حسامی، ایڈیٹر پیٹریوٹک ویوز و چیئرمین زیڈ نیوز ٹی وی چینل نے کیا۔ مولانا ریاض احمد نے کہا کہ فروری 2016 میں اردو لکس اردو ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا، جس کے ذریعے روزانہ سیاسی، سماجی، تجارتی اور دیگر اہم معلوماتی خبریں اردو قارئین کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ اردو لکس نہ صرف حیدرآباد، تلنگانہ بلکہ ہندوستان اور خلیجی ممالک میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس کے روح رواں ایڈیٹر اردو لکس ذیشان علی زاہد اور ان کی ٹیم کی خدمات قابل ستائش ہے۔ مولانا ریاض احمد نے ایڈیٹر ذیشان علی زاہد اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاض احمد نے کہا کہ نوجوان نسل اردو صحافت کے میدان میں ایسی نمایاں خدمات کے ذریعے ملک و قوم کے لیے انقلابی خدمات سر انجام دے سکتی ہے، جس کے لیے اردو لکس ایک اہم مشغلہ راہ ہے۔
तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर जी चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया है, जो काबीनी दर्जा का ओहदा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के पत्थरगड्डी SYJ कॉम्प्लेक्स के पीछे हिस्से में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। टेलर्स और बुरखे की दुकानात के मालिकीन की जानिब से उमूमन कचरा फेंका जाता है, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स के पीछे हिस्से में कचरा जमा हो गया। किसी ने इस कचरे पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी, जिसके सबब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस वाक़े के साथ ही मुकामी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी वहां पहुंचकर जायज़ा लिया, जबकि फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काफ़ी जिदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में एक शख्स के झुलसने की इत्तला मिली है। आज यहाँ 1 बजे के करीब 1 और सवा 1 के दरमियान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मुंज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ोन किया कि फायर ब्रिगेड का मैं अभी फ़ोन करके बोला हूँ, और फौरी जाइए यहाँ SYJ कॉम्प्लेक्स पे। तो मैं यहाँ पर आया, इमीडिएट फायर ब्रिगेड भी आया, हमारे इब्तदाई के सदर मेहदी भाई भी फ़ोन किए, और यहाँ के लोग आने के बाद पता चला जो यहाँ कचरा है, इससे तीसरी मर्तबा है यहाँ पर SYJ कॉम्प्लेक्स का बैक साइड है जहाँ कचरे का एक अंबार है। लास्ट टाइम भी जब आग लगी तो इससे बड़ी शिद्दत की आग लगी थी, बहुत बड़ा, यानी वायर वगैरह ये वो भी केबल्स वगैरह भी जल गए थे। जब ही हम बोले कि भाई यहाँ का जो मेंटेनेंस है SYJ कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, जो केयर टेकर है, उनकी बड़ी लापरवाही हो रही है, और अभी भी यहाँ के लोगों की ख़ास तौर से जो टेलर का काम करते हैं वो जाते जाते दुकान बंद करके वो कचरा जो खुली स्पेस है उसमें फेंक के चले जाते हैं। ये ख़ास तौर से SYJ कॉम्प्लेक्स के जो मेंटेनेंस के ज़िम्मेदार है, जो केयर टेकर है या कॉम्प्लेक्स के, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये लापरवाही नहीं होना चाहिए। आप लोग जितने टेलर है रोड पे लेके जाके अपना कचरा गार्बेज जो भी है वहाँ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगी, बड़ी शिद्दत की आग थी। बैरिस्टर साहब ने फायर ब्रिगेड को इमीडिएट फ़ोन करके भेज दिया। अल्लाह के करम से कोई हादसा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ज़ख्मी हुए, और फायर ब्रिगेड का भी अमला अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तेज़ी से फुर्ती से काम किए है। अब मुकम्मल तौर पे आग बुझ गई है। अब ये सब भी वापस जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से SYJ कॉम्प्लेक्स के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई ये हमेशा यहाँ बार बार आग लग रही, इसका ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। जलसाए फैज़ान शब बारात बरोज़ इतवार बतारीख़ 25 फरवरी 2024 बाद नमाज इशा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाजिम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम का मस्जिद महमूदा BK पुरम शास्त्रीपुरम में ख़िताब होगा। नमाज इशा 8:30 बजे अदा की जाएगी। अवामुन्नास से कसर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि हुस्नाबाद और हुजूराबाद हलकों में इस माह की 26 तारीख से पदयात्रा मुनक्किद की जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर वो रोज़ाना औसतन 10 मवाज़ियात का दौरा करेंगे और मरकज़ी हुकूमत की मुतारिफ़ करदा फलाही स्कीमात की तफसीलात को अवाम के सामने बयान करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा इस महीने की 26 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि रियासत भर में विजय संकल्प यात्रा कामयाबी से जारी है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह यात्रा के अख्तामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। चाय की पत्ती, सर्फ एक्सेल और दीगर आइटम्स को डुप्लीकेट बनाकर फ़रोख्त किया जा रहा था। इस सिलसिले में काचीगुड़ा पुलिस और टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक रैकेट का पर्दाफाश किया और इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मज़ीद 3 लोग फरार बताए गए। इस सिलसिले में DCP ईस्ट जोन ने तफसीलात बताई। నెక్స్ట్ మేము చూడాల్సింది ఏంటంటే క్యాప్ కలర్, ఈ బాటిల్ కు ప్లస్ ఈ క్యాప్ కు కలర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇది కౌంటర్ ఫీట్ అంటే ఇది డూప్లికేట్ అన్నట్టు. ఇదే అయితే చూడండి సేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ప్లస్ దీని యొక్క ఉన్న నాబు ఈ बॉटम क्या के अंदर काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक इंफॉर्मेशन आया तो हमारा पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस के साथ रेड करे तो यहाँ महेंद्र सिंह बोल के एक नाम आदमी है, डुप्लीकेट अडल्ट्रेटेड स्पूरियस कोकोनट ऑयल, सर्फ एक्सेल, व्हील पाउडर, डुप्लीकेट फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स लाइक लाइजॉल, हार्पिक,
रेड लेबल टी पाउडर्स लाइक रेड लेबल, ब्रूक बॉन्ड, स्पूरियस, मसाला, एवरेस्ट के नाम पे ऐसे नाम डाल के ट्रांसपोर्ट कर रहा बोल के हमें इंफॉर्मेशन आया तो रेड करके पकड़ लिए उनको। पकड़ के उसको एग्जामिन करे तो उन्होंने बोला सर हम श्याम भाटी और कमल भाटी के पार्टनरशिप में काटेदान में मैन्युफैक्चर कर रहे और नागारम में एक गोडाउन में यहाँ पूरा रखे, वहां से डिमांड के ऊपर हम लोकल मार्केट को बेच रहे बोल के बोले तो हम वो दोनों के ऊपर भी रेड करके पूरा सामान जब्त कर लिया। इसमें पूरा मटेरियल का और प्रोडक्ट का और इक्विपमेंट का खरीद 2 करोड़ तक है, ये पूरा जब्त करके कोर्ट को रखे। और हमारी तरफ से पब्लिक को गुजारिश है कि ऐसे डुप्लीकेट सामान नहीं खरीदना। अगर कुछ डुप्लीकेट सामान कहीं भी आप देखे तो पहचाने तो हमको पुलिस को इंफॉर्मेशन करना, नहीं तो डायल 100 को इंफॉर्मेशन दे तो भी हम ये लोग ये प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट तैयारदारों को भी गिरफ्तार करेंगे। निर्मल ज़िले के भैंसा में बुकला और कोर्ट के अमले के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। भैंसा जूनियर सिविल जज देविंदर बाबू की जानिब से कोर्ट के बुकला और अमले के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर रामा कृष्णा गौड़, डॉक्टर अनुर मोरे, डॉक्टर श्रीवती रेड्डी के अलावा मुधोल एलवी प्रसाद आँखों का दवाखाना कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर साईनाथ और लैब टेक्नीशियंस शेख करीम SKR, मोहम्मद जीशान, बालाजी, श्रीनिवास और नवीन कुमार व दीगर ने तिब्बी खिदमात अंजाम देते हुए BP, शुगर, ECG और आँखों की जांच और खून की जांच के लिए खून के नमूने हासिल करने के अलावा अमराज की जांच और तशख़ीस की, जिस पर भैंसा बार एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान जिनमें सदर बी रघुवीर एडवोकेट, मोहम्मद मुनीर अहमद एडवोकेट, संतोष एडवोकेट, W भीमराव एडवोकेट, मुरलीधर एडवोकेट, साईनाथ एडवोकेट व दीगर वकला और अब्दुल रहमान ने मज़कूरा डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनकी तिब्बी खिदमात की ज़बरदस्त सताइश की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इस माह की 27 तारीख को प्रियंका गांधी तेलंगाना में मज़ीद 2 स्कीम्स का करेंगी आगाज़। 1 जुलाई से मुल्क भर में नया फौजदारी कानून हो जाएगा नाफिज। जी चिन्ना रेड्डी तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुकर्रर। KB रंगारेड्डी कॉलेज में तालिबात को नमाज पढ़ने की मिली इजाज़त। MLA जाफर हुसैन मेराज की कॉलेज इंतज़ामिया से बातचीत। रोज़मर्रा की अशिया में मिलावट, काचीगुड़ा पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार जबकि 3 फरार। तेलंगाना में BJP की यात्रा, इख्तितामी प्रोग्राम में अमित शाह करेंगे शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्ड लाइन डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइत बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे।
दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।